عمران سے جب جان چھڑائی گئی تب بھی میں کہتا تھا کہ اس کو پورا وقت دو، 4 سال گزار لیے، باقی 3.25 سال باقی رہ گیا۔ عمران سے جان چھڑانے کے کا صرف ایک طریقہ، فیئر پلے، اقتدار میں آنے دو، اسے ڈسٹرب نہ کرو۔ اگر ملک ٹیک آف کر گیا تب بھی لاٹری نکل آئی، اگر عمران فلاپ ہو گیا تب بھی آپ کی لاٹری نکل آئی، پھر آپ کا دوبارہ آپ کی نوکریاں لگ جائیں گی، دہاڑے آپ کے پھر سے شروع ہو جائیں گے، تو صبر کر لو، وہ بھی نہیں۔ ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو UIP نیوز۔ سو آج کی جو ڈسکشن ہے بیسیکلی وہ پاکستان کے پولیٹیشنز کو لے کر ہے، اور یہ پاکستانی ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جس کا کہ ہم نے بیسیکلی آپریشن کرنا ہے۔ اور آپریشن یہ ہے کہ پاکستان میں سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں وہ پبلک، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی پبلک ہے وہ اپنے سارے پولیٹیشنز کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پولیٹیشنز ہیں کہ ان کو وہ پبلک نہیں دکھ رہی ہے۔ اور اگر عمران خان کی بات کریں تو حسن نصیر صاحب بول رہے ہیں کہ اگر اس سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ فیئر الیکشن کراؤ۔ فیئر الیکشن کرانے سے کیا ہوگا کہ اگر وہ سکسیز ہو گیا تو ملک آپ کا بلے بلے ہے کہ وہ اکنامی بچا کے لے گیا، اور اگر وہ فیل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے جیسے اس کو پاکستان میں پہلے بہت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، پبلک بہت ناراض تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ واپس اپنے دوبارہ سے الیکشن کراؤ اور آپ ستا لے لو، تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں آپ کے، تو اس میں کوئی ایسا کوئی چیلنج تو ہے نہیں۔ اور یہ وہی دیش ہے جس کے لیے وہ بول رہے ہیں کہ قائد اعظم جناح نے اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے ودیش نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بننا وہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ اور اس دیش کے کو سنبھالنے والے جو پولیٹیشنز ہیں آج ان کی کیا حالت ہے، وہ اس کو بیسیکلی کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی تم جتنے بھی پولیٹیشنز ہو ایک دوسرے کو گالیاں دینا بند کرو، کیونکہ گالیاں دینے سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ ملک کے بارے میں جب تک نہیں سوچو گے کچھ نہیں ہوگا، آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے رہو گے، اور ملک جو ہے وہ دھیرے دھیرے ڈوبتا چلا جائے گا۔ ملک آج کی ڈیٹ میں ایک ایسے مہانے پہ کھڑا ہے جس سے واپسی امپاسبل ہے، اگر یہاں سے واپس نہیں گئے دین بہت بری حالت ہونے والی ہے۔ اور عام پبلک جو ہے وہ دانے دانے کو ترس رہی ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہو پاکستان میں اس سمے آٹا، گیہوں، دال، چاول، سب چیزوں کی کتنی بری حالت ہے، یہاں تک کہ سبزیاں۔ آپ خود سوچو ایک دن آپ کو سبزی میں اگر پیاز کے ریٹ بڑے ملتے ہیں تو کتنی بری حالت ہوتی ہے، اور وہاں تو ہر چیز کی یہی حالت ہے۔ اور اس کو لے کے بھی پاکستان میں پولیٹیشنز کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ IMF سے پیسہ مل جائے، اگر IMF $1 بلین دے دیتا ہے تو وہ اس میں سے پیسہ کھائیں۔ سارے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ جو پیسہ آئے گا کروڑوں روپیہ، اس میں سے ہمارا کیا حصہ ہے۔ اسی لیے یہ جوڑ توڑ کی سرکار بنی ہے، اس میں کئی لوگوں کو ملا کے جو سرکار بنائی گئی ہے پاکستان میں، وہ صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ کافی سمے سے پولیٹیشنز سطح سے باہر تھے، تو بیسیکلی ان کا ایجنڈا یہی ہے۔ سو حسن نثار صاحب کی آگے کی کامیڈی سنتے ہیں۔ کامیڈی کیا ہے، وہ ویسے تو سیریس ڈسکشن ہے بٹ ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ کامیڈی ہی ہے ایکچولی، اور کسی بھی کنٹری کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس طرح کے پولیٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کا ایک ایک سبسکرپشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ ہماری ساری ویڈیو شیئر کریں، اس سے ہمیں بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں، جو بھی آپ کے ویوز ہوں کمنٹ کریں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں ملتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیدھا سادہ کام ہے، الیکشن کراؤ، صبر کر لو، کو موت پڑتی ہے، اللہ سے زندگی دے تم سب کو۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو یہ بدنیت ہے، ایک ایک چیز ہے ہمارے سامنے، آپ اس کو ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہو، میں اس کو ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہوں۔ یہ بھی میں وہ بات نہیں کر رہا اقبال والی جو میں نے پچھلی بار کی تھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ وہ نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی جینولی ایک اپنا، اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ سپریم کمانڈر ہے صدر، وہ اس کا اچھا کہتے کیا ہیں چول کہ اس کی اوقات کوئی نہیں، اس کا فلاں کوئی نہیں، وہ تو اپنی ناک نہیں صاف کر سکتا، چھچورے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
वो तुम्हारे घर का बुजुर्ग भी कुछ नहीं कर सकता। घर में वो सबसे मुहतरम होता है अगर घर वाले बेशर्म, बेहया और बेगैरत ना हो। तो ये क्या है? सदर चेहरा है तुम्हारा, उसके पास चले जाओ। अच्छा, वहां नहीं जाना, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो डेंटिस्ट है, तुम्हारी दाढ़ी ना निकाल दे, चलो। तो भाई फिर अदलिया कहे के लिए रखेंगे? मेरा सादा, ये बहुत सारे छिछोरे ये बात कर चुके हैं कि सदर को खारिज नहीं कर सकता सदर के। तो अगर उसके पास इख्तियार नहीं है, वी हैपन्स टू बी योर फेस, चलो उसकी भी ना मानो, उसकी बेइज्जती ना करो। मैं कोई एडमायरर नहीं हूं अलवी का, ये मैं बता दूं आपको, अलवी साहब ये वो वगैरह, मैं कतन नहीं। जो अदलिया है भाई, अब फिर अवाम के पल्ले क्या रह गया? ना सदर है, ना फलाना है, ना अदलिया है। तो फिर ये मुल्क किसी को, देखो ना, यूएई वाले मांग रहे हैं कि फला अपना इदारे हमें दे दो ठेके पे, मुल्क दे दो ठेके पे। तो अच्छा था मुल्क ढूंढो कोई डिसेंट था। जसिंदा ऑर्डन फारग हो गई है, हंसती खेलती खूबसूरत, जमा उम्री में फारग हो, उसके हाथ पांव पकड़ो, इसको बीबी ये मुल्क है, माल पैना है, तो इसे ठेके पे दो, वो संवार देगी तुम्हारा। खुदा का खैर, पत्तियां कस रहे हो किस पे? सदर पे। वो कौन है? तुम्हारा सुप्रीम कमांड। तुम ना एस्टैब्लिशमेंट को माफ करते हो। ये सभी ऐसे हैं, ये काने नमक है पाकिस्तान की वजीर सियासत, काने नमक। इसमें जो भी जाए, ये गटर है, इसमें जो भी गिरेगा वो गलीज है। तो रहम करो, इलेक्शन सब पता है, कॉमन सेंस, लोग जानते हैं। इस मुल्क पे रहम करो, इसकी बेड़ियों में मजीद वटे ना डालो। तुम्हारी लॉटरी है ना, तो कल फिर निकल आएगी, कुछ नहीं होता। ये जो 22-24 करोड़ भेड़े हैं, इनका गोश्त तुम्हें मुयस्सर रहेगा। इसको स्मूथ सेलिंग बस करो तो माशाल्लाह। जी, इसमें तो कोई शक नहीं हसन साहब कि अदलिया ही इस वक्त मुल्क की आखिरी ऑप्शन है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन तारीख के मामले पर खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच बना दिया है, कहा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं, आईनी खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। सुभानअल्लाह, आवाम को चाहिए अपनी अदलिया के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाए। उसकी वजह है, अदालत मजबूत तो अवाम मजबूत, अदालत बावकार तो अवाम बावकार। ये हमें नसीब नहीं हुआ पूरी तरह। इस मुल्क का आलमी आई, तो मैं कई बार हवाला दे चुका हूं, मुझे वो मैगजीन भूलता नहीं कि पाकिस्तान का क्या अदलिया, क्या कि पता नहीं क्या, प्रोटेक्ट्स द रिच एंड पनिशेस द पुअर। ये बेसिकली, अच्छा फिर ये कि हाजिर जजों को कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट, सुभान अल्लाह, तुम कॉम्प्रोमाइज, हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट केसेस अभी तक मौजूद, नाअहली अभी तक नहीं। ज़ियाउल हक की पैदावार हो, खुदा का खौफ करो। तुमने तो अपने घर के बाहर जो एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी जस्ट टू प्लीज एंड पैम्पर ज़ियाउल हक, उस डिक्टेटर से तो तुमने मस्जिद का वो रखवाया था, वो जो भी होता है, पत्थर लगवाया था, अब भी लगा हुआ। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या होना है? कोई पूछे इनसे। इससे बड़ी करप्शन क्या होनी है? कोई पूछे इनसे। आज तक घर का वो इंग्लैंड की जायदाद का जवाब ही कोई नहीं है। अच्छा, बात कर रहे हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी मुस्तकबिल के चीफ, उनके बारे में बात, क्या कॉम्प्रोमाइज और करप्ट। आप अपना आगाज तो देखो, वोट को इज्जत दी थी ज़ियाउल हक ने, उसकी पैदावार तमाम इस मुल्क के बदतरीन, सफाक तरीन, एहसान फरामोश तरीन डिक्टेटर के तस्मे भी, सुभान अल्लाह, आज कौम को भाषण दे रहे हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, इलेक्शन से दौड़ लगा रहे हैं।
जी अगली खबर पे चलते हैं आज़ाद साहब। न्यूयॉर्क की अदालत ने अमरीकी हुकूमत को अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स में से 9/11 के मुतासरीन को देना गैर कानूनी करार दे दिया है। फैसले में लिखा है कि मुंजमद फंड्स तालिबान को दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सलाम उनकी अदलिया का वकार उन्होंने खुद बनाते हैं, अवाम बनाते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, ताइज्जत बात। और मैं दोबारा जो आप कह रहे हो बताऊं कि अमरीकी हुकूमत ने कहा था कि अफगानिस्तान का जो अरबों रुपया उनके पास पड़ा है वो 9/11 के मुतासरीन को दे दें। अदलिया ने कहा नो, तालिबान को दो। इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं कानून। अपनी हुकूमत के फैसले को नल एंड वॉइड करार दे दिया, इसीलिए वो सुपर पावर है, याद रखें। निजाम इंसाफ, ये हम अपनी अदलिया के साथ पता नहीं, खुदा की कसम, पाकिस्तान जब बना था तो इसकी बुनियादों में किसने कौन से ताबीज लगाए, जान पे खेल गए। बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, वो आदमी अपने इलाज के लिए बाहर नहीं गया कि बात निकल जाएगी। ये पाकिस्तान को अल्तबा में डाल देंगे, लिंगर ऑन करेंगे ताकि मैं मर जाऊं और घंटा खत्म हो। उसने जान कुर्बान की और बेशुमार। वो कभी उनका सोच लो, जिनकी बहू, बेटियां, माएं, बहनें पीछे रह गई और जिनके जवान रिश्तेदार, बाप, भाई, बेटे कत्ल हुए। इनको रहम नहीं आता। उसकी वजह है ये तबका ही और तरह, ये क्लास ही और, इनमें ग्रेस नाम की कोई चीज नहीं। किसी बंदे ने खुश दिली से पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद को बात सुनी। अभी हमारे जो नायब के थे उनको देख के खुशी हुई, रश का तो चलो यार, तो नजर बट्टू हम में भी है। ऐसे लोगों की वजह से शायद हम नजर बद से किसी स्टेज पे बैठे। छोड़ो जी। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि IMF के मुआहदे के तहत महंगाई मजीद बढ़ेगी। दूसरी जानिब कफायत शहरी मुहिम में मुजरा ने तनख्वाह और मुराद ना लेने का ऐलान किया है। देखो मरियम, ये एक दो तेरी सी ये जो बात आपने बयान फरमाई है, महंगाई का वज़ीर आज़म ने क्या कहना। इस मुल्क का मासूम 4-6 साल का बच्चा जानता है कि मेरी जो घटिया सी एक टॉफी थी 6 महीने पहले, साल पहले कितने की आज होती, तो बच्चा बच्चा जानता। अच्छा, मजीद कोड़े लगेंगे, मजीद दर्द होगा, पता लग जाएगा। हाँ, आपको बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक नहूसत मैंने कहा था, ये जो इत्तेहाद शतार है, ये इन्होंने दो चीजें महंगाई को जन्म दिया, दो चुड़ैलों को। एक महंगाई थी, एक नहूसत थी। तो नहूसत तारी है, सबको पता है। अच्छा, रह गया IMF, तो एक बात याद रखना, उनको इल्म नहीं है कि हम लोग कौन हैं, हमारा निजाम कैसा। अमीरों पे टैक्सों, बात सुनो, अरबों खरबों की बिजली सिर्फ लाहौर शहर में चोरी होती है, और ये सारे के सारे नींद के फलन से। तो खुदा का खौफ करो, पता ना लगे कहां लिखा है। ये उन लोगों के बेनिफिशरीज हैं, उनसे जगह और भत्ते लेते हैं। तो अंदाजा है, बातें करते हैं बाजों का मुंह उठा के कि ये फौज का बजट, तो अपनी कभी ये चोरी तो देखो, लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, कभी ये तो एक वर्कआउट तो करो, इसका खर्च कितना है और ये क्यों है। खुदा का खौफ करो। 13 डाका डालते हैं, उधर बिजली खाई, इधर प्रोडक्शन कम शो की, तो उधर टैक्स खाया। ये जो IMF वाले हैं ना, वो जानते नहीं है कि हमारी एलीट कितनी, मतलब डैश, कितनी डैश है। और ये वो एलीट है, पाकिस्तान की एलीट, जिसने पाकिस्तान का, अगर ये
if it is like a human body, इसके हर मुसाम में पतले पतले बारीक बारीक स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉस डाल के उसका खून पीने वाली ये क्या आ गए हो कि जी अच्छा सैलरी क्लास है जिनका पता है उनको ठुकेगा, उनसे इंतकाम लेंगे, पहले भी लेते आ रहे हैं अब भी लेंगे। अब आओ इनकी कफायत शारी की तरफ, वो मैं सदके जाऊं 10 महीने तो मैं पाल सकूं। तनख्वाहें मराहत इनकी क्या होती हैं? कुछ भी नहीं, रेजगारी भी नहीं है। ये असल तो पर्दे के पीछे क्या, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये इन तनख्वाहों के लिए आते हैं, तो ये तो उनका एक दिन का खर्च नहीं होता। अब ये बात आप मासूम बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगी। ये एक दिन का है, हाँ जी एक दिन का नहीं होता। ये तनख्वाहें इनकी जो है ना वो पीनट्स, घोंघरों से मट्टी झाड़ी है। लोगों को एक और तरीके से बेवकूफ बनाया है। तनख्वाहें नहीं लेंगे, तनख्वाहें तो मरी गए हैं, वो जो आने जाने के वो किराए से क्या है, वो 85 बंदा भर्ती किया हुआ है। भर्ती देखो बात सुनो, खरबपति भी हो ना डॉलरों में, वो भी एक मुलाजिम जब रखता है ना तो वो तवक्को करता है, तवक्को नहीं करता, क्लियर माली रखा है ये काम, इतना बड़ा लोन है इतने माली चाहिए। यहाँ तो इस मुल्क में तो खाता ही कोई नहीं, और ये ब्यूरोक्रेसी में भी है ऐसा ओवरलैपिंग हो रही है। बंदे पड़े हैं, तनख्वाहें फाड़ रहे हैं, हरा अच्छा तनख्वाहें नहीं इस मुल्क में इशू, ये याद रखो। यहाँ 18वें 16वें 17वें 14वें ऐसे क्या तनख्वाह मुझे बता, देनदारी से सोचो। और यहाँ तो पटवारियों तहसीलदारों की बीवियां और उनके घर नहीं गिने जाते हैं, तो तनख्वाह है कल को छोड़ देंगे। तनख्वाह तो उनके एक आध पालतू कुत्ते की खुराक नहीं। कैसे होता है ये मुल्क, कैसे चल रहा है? 18वें ग्रेड का, 20वें का, 22वें का, इनके तो बच्चे बात पढ़ते, कैसे गुजर बसर होता है मुझे बताओ। सादा बात, कोई इसमें कोई फिक्र नहीं है, कोई फलसफा नहीं है, कोई दानिश नहीं है, कोई साइंस नहीं है। सादा बात, 18वां 17वां 20वां 22वां के टेक होम बता दो। जियो आर का जो घर होता है इनका बड़ा, चलो वो ठीक है, वो एक और बदमाशी है, उसकी दास्तान को छोड़ो। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स तो लेने किसी ने नहीं, उसको छोड़ो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसने वो जियो आर का घर को अल्लाह माफ करे तो बरी में लेके जाना होता नहीं, बिगाड़ते खुद हैं। कोई बंदा जो 22वें ग्रेड में से रिटायर होता है वो बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारते होता है, तो उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ होना क्या है 60 साल के बाद, फिर मैं कैसे रहूंगा। इसलिए वो हराम खाता है, जरूरी है, गन पॉइंट पे उसको जरूरी है कि वो 22 से शुरू हुए 22वें पे आप फारिग हो गए, 60 साल क्यों हो, कैसे रहना है बाहर, बच्चे कैसे पढ़ाने, मुझे तो बता दें आज तक। और ये अवामी नुमाइंदे, ये सारे के सारे ईदी। मुझे एक बात बताओ कि सारी असेंबली, सेनेट, नेशनल असेंबली, इतने ईदी मुल्क को कहाँ ले गए? एक ईदी पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। अगर ये मेरी और आपकी खिदमत के लिए आते हैं और ये मामूली सी तनख्वाहें, वो ना छोड़ो तनख्वाहें, जहां मैं कहता हूँ वहां हाथ रख के कसम खा दो के आराम नहीं खाओगे, 2-4 तो मैं पाल लूंगा। इसलिए छोड़ो ये सारे टोटल एक से एक बढ़ के ज़बानी जमा खर्च, वारदात, हेरा फेरी, बेवकूफ बनाने के प्रोग्राम, नौटंकी चल रही है इसमें। बाकी छोड़ो कि ये नहीं लेंगे तो वो नहीं लेंगे, चलो तो अच्छी ढंग की बात करो। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मरियम नवाज से अंदर की बात बताई है कि पीटीआई के लोग नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पर? यार ये तो कमेंट के काबिल भी नहीं, इट डजंट मैटर यू गोना कमेंट। तो क्या है भाई, अगर इसमें 1% सच्चाई भी होती, 1%,
इनके अपने भागना ना चाह रहे होते 1% से चाहिए। अच्छा न्यूट्रली केस होता 1% भी ना होती तो ये भगौड़ों की तरह इलेक्शन से भाग रहे होते हैं, दुलत्तियां झाड़ रहे हैं, आग उगल रहे हैं, क्यों? इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए। मैं वो एक इंडियन फिल्म थी, उसमें वो कहता है, वो कोई उसका किरदार होते हैं दो, एक खातून होती है तो वो डोंगी मारती है खातून, तो वो जो दूसरा उसका भाई है या पता नहीं क्या है, वो कहता लता तुझे कुछ नहीं पता। वो लता नाम है इंडियन फिल्म में उस कैरेक्टर का, तो वो कहता लता तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा मैं कब से कह रहा हूँ तेरा लुटिया शहर लाहौर ससिए बेखबरे, या तो वाकई बेखबर हैं, इसमें बेखबरे पे जोर है, या वाकई बेखबर हैं, फिर या बेवकूफ है, या लोग आपको बनाए। देखो नून लीग के बहुत से लोग पीटीआई के ओहदेदारों को करोड़ों रुपया रिश्वत दे के टिकट लेने और नकब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं, सरदार कामिल उमर, ये पूरी फैमिली इन्फ्लुएंशियल फैमिली, अच्छे लोग, ठीक है, कोई जमात उन्होंने छोड़ी नहीं। 90, 97, 2007, 17, 22 ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ी। और अब पीटीआई के एक मियां बीवी, अगली बार नाम भी ले दूंगा, उनके थ्रू उनको ब्राइब करके ये पीटीआई में एंटर होना चाह रहे हैं। एक मिसाल, अगली बार दूसरी, उससे बाद तीसरी। पागल है पीटीआई का, पीटीआई को छोड़ना चाहेगा। और मुझे तो कोई पता नहीं, अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए इस मुल्क की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। मसलन जिनकी अंतड़ियां निकालनी थी उनके सामने ताबेदार बन के बैठे होते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये हो चुका है ना। अच्छा परवेज इलाही साहब पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, ये हो चुका है ना, तो कोई पता नहीं। ये मुल्क है, हम जिंदा कौम है या शर्मिंदा कौम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रियलिटी कल अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो कोई पता नहीं, मरियम खुद ज्वाइन कर ले पीटीआई। वैसे ऐसा सर मरीम नवाज से एक सवाल ये भी पूछा है, क्या बुज़दिल इंसान लीडर हो सकता है? बुज़दिल ज़मान पार्क में छुप कर बैठा है। हरगिज़ नहीं हो सकता, बुज़दिल आदमी कुछ भी हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। अच्छा और ज़मान पार्क में जो छुप के बैठा है वो तो स्ट्रेटेजी है, अगर वो अंदर चला जाए तो तहरीक कौन चलाएगा। अच्छा और जो शेरे गवाल मंडियो जाती उमरा है वो तो पूरे पाकिस्तान में दौड़ता फिर रहा है, कभी जद्दे दौड़ता है, कभी लंदन दौड़ता है, तो खुदा का खौफ है। क्या स्टैम्प पेपर करके क्या 100 रुपए चीट करके भगा हुआ है एक आदमी। शेरे गवाल मंडियो गिरदा नवाब और जाती उमरा वो लीडर है। अच्छा जो शेरों की तरह डटा हुआ पूरी ताकत के साथ 13 के 13 को या 14 ये जितने भी हैं सबको उसने भड़का के रखा हुआ है, उसके आगे लग के भाग रहे हैं, आइन तक को पामाल करने पर तैयार है। वो बुज़दिल है, वो क्या कहते हैं शेरे अमन फील्ड और शेरे पता नहीं क्या सरूर पैलेस, वो लीडर है। तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह की कसम झूठ झूठ बंदा बोल लेता है, कोई बात नहीं, जायके की तब्दीली या मौसम की तब्दीली के लिए बंदा झूठ झूठ बोल रहा है जिंदगी में, लेकिन इतना झूठ आई डोंट नो यार, इनका इनके दिमाग कैसे काम करते हैं, जुबानें कैसे काम करते हैं, मेरी समझ से बाहर, ये तब का ही कुछ और पर यही नसीब है हमारे, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक। हाँ ठीक है साहब, और अब आखिरी सबसे अहम सवाल, पीटीआई की जेल भरो तहरीक का नारा है, जेल भरो आज़ादी दो, जेल भी आज़ादी भी, ये कैसे मुमकिन है और क्या ये तहरीक कामयाब होगी? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नेल्सन मंडेला एक सिंबल है, एक इस्तारा हमारी जदीद तारीख का, जेल भरी आज़ादी ली। और ये जो कहते हैं ना, वह अगेन चपट बनाती है कि जी वो
इमरान गरीब फलाना तो तुमकाना, ये इनकी कोशिश है, ये जो PDME है, कि सियासत सुकूत मर्ग इस पे तारी हो, मौत की खामोशी। इमरान ने उसे जिंदा रखा। जेल भरो तहरीक का मतलब ये नहीं कि कोई से खजाना भर जाएगा, महंगाई कम हो जाए, कुछ नहीं। वो इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत को जिंदा रखे हुए है। और दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। जेल भरो तहरीक का कुछ मतलब ये थोड़ी है कि जेलें भरिया तो जेलें भरनी, फिर क्या होगा? पाकिस्तान की माशाल्लाह गरीब गुरबा से भरी हुई है, तो सियासी कारकुन भी चले गए, क्या आसमान टूटेगा? नहीं भाई, ये सिंबॉलिक बात है। ये मुख्तलिफ मैदान जंग है इस वक्त, ये मुल्क मैदान जंग, मुख्तलिफ हथियार आजमाए जा रहे हैं। देखो, अगर मैं और आप दुश्मन है और आप मेरे बहुत करीब हो तो तीर कमान बेकार है, अगर आप मुझसे बहुत दूर हो तलवार बेकार है। सो पैंतरे बदले जा रहे हैं, मुख्तलिफ हथियार आजमाए जा रहे हैं, उनमें से एक हथियार का नाम है जेल भरो। खत्म, लोगों को जिंदा रखा हुआ है। इमरान का सबसे बड़ा कारण, मुझे नहीं पता इक़्तिदार में कैसे और कितना डिलीवर करेगा, लेकिन एक बात उसने साबित कर दी कि पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा ऑपोजिशन लीडर नहीं पैदा हुआ। जिन्ना साहब के बाद उस वक्त कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ, ये याद है। कमाल है, इतनी देर से 13-14 ये चिमड़े हुए हैं कौम के साथ, मुल्क के साथ, खुदाने के साथ, और वो जिंदा रखे हुए हैं। उसमें फिर मुख्तलिफ हड्डे, मुख्तलिफ हथियार। जब आमने सामने की जंग हो तो तलवार है, जब फासला हो तो तीर कमान है, उससे भी बड़ा हो तो मंजनीक है। इट इज वन ऑफ द टूल्स, वन ऑफ द वेपन्स। ये जानबूझ के या ये बेवकूफ बहुत है, लेकिन नहीं, ये बेवकूफ इतने हो नहीं सकते, इनको पता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन वो यमला नहीं, यमले जाते हैं, ये सारा पता सारा है। ऊपर से अमीर गाँवों से मट्टी मुट्टी झाड़ते हैं, वारदात वगैरह करने की कोशिश करते हैं ताकि शायद अवाम को बेवकूफ बना सकें। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि अब अवाम पेट से सोच रहे हैं, उनकी अकलें जवाब दें। पीपल आर थिंकिंग थ्रू देयर स्टमक्स, और उनके मेदों में रोटी की बजाय आग भरती जा रही है। भरने का इंतजार करो, अल्लाह ना करे। साद रिजवी साहब का बयान था चंद दिन पहले कि हम फिर वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं, याद रख। अल्लाह ना करे ये सिलसिला, मैं बार बार, मेरा तकिया कलाम बन चुका है, ये होश करो, ठंडी करके खाओ, वरना मुंह जलेगा नहीं, अंगारों से भर जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि डिस्कशन बहुत सीरियस था और आपने भी काफ़ी पेशेंसली पूरा डिस्कशन सुना। हसन निसार साहब का जो डिस्कशन है वो बहुत ही फंटास्टिक होता है। जब उनका डिस्कशन सुनो तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो इतनी डीप बातें करते हैं और बहुत सीरियस बातें करते हैं। तो उनका डिस्कशन मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। और उनकी ये डिबेट बहुत लंबी थी बट हमने बीच बीच में से काट दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने उठाए हैं। सो इसी तरह की और डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले वीडियोस आपको टाइमली अलर्ट आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।